زاویار شدید غصے میں کیب کروا کے حویلی پہنچا۔ یہاں کے راستوں سے اسے کوئی واقفیت نہیں تھی، نہیں تو جتنے طیش اور غصے میں وہ اٹھا تھا، خود گاڑی ڈرائیو کر کے حویلی جاتا تو سارا راستہ اپنا خطرناک قسم کا کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ضرور کروا لیتا۔ اپنی جیب میں موجود پیسے بغیر گنے پھینکنے والے انداز میں ڈرائیور کے منہ پر مارتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ میر حویلی کو بھی پھولوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ اتنی سجاوٹ دیکھ کر زاویار کو اپنے اندیشے سچ ہوتے ثابت ہوئے۔ زاویار سیدھا آغا سائیں کے کمرے میں گیا۔ وہاں لگی بڑی بڑی خانم کی تصویریں دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ایک دم دل میں ٹیس اٹھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی گواہ تھی، صنم سونیا اس کے عتاب کا شکار ہونے والی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی گواہ تھی کہ صنم اور سونیا اب اس کے عتاب کا شکار ہونے والی تھیں۔ زاویار شدید اشتعال میں حویلی کی بیٹھک میں آ کر چیزیں توڑنے لگا۔ صنم سونیا، صنم سونیا، زور زور سے آوازیں لگاتا۔ ہاتھ میں جو چیز اس کے آتی وہ زمیں بوس کرتا جا رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر تیار شیار سی خواتین بیٹھک میں آئیں۔ صد شکر تھا کہ مرد حضرات فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ اب بس خواتین تھیں جنہیں لے جانے کی ذمہ داری اکثر نے اپنے ذمہ لی تھی۔ صنم جو پہلے ہی ساحر اور خانم کی شادی پر دکھی تھی، زاویار کی دھاڑ سن کر اس کی روح لرزی۔ تو کیا اس بات سے بھی پردہ اٹھنے والا ہے؟ کیا زاویار ادا سائیں کو سب پتہ چل گیا ہے؟ صنم کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ زاویار سائیں، سمینہ، جواد زاویار کو دیکھ کر بے وقت خوش اور پریشان ہوئی تھی۔ زاویار سائیں، سمینہ جواد زاویار کو دیکھ کر بیک وقت خوش اور پریشان دونوں ہوئی تھیں۔ اگر کوئی واپس آ گیا تو؟ زاویار سائیں، ہما جاوید میر بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ صنم کہاں ہے مما؟ اور وہ سونیا؟ آج میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا، بتائیں مجھے کہاں ہے وہ دونوں؟ زاویار بیٹا، کیا کیا ہے صنم نے؟ تم کیوں اسے مارو گے؟ سمینہ بیگم پریشان ہوئی۔ تبھی ڈرتے ڈرتے صنم بھی وہاں آئی۔ زاویار چیل کی طرح صنم کی طرف لپکا۔ خانم برائیڈل روم میں آ کر تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ زاویار اور ساحر دونوں کا میسج دیکھ کر خانم کچھ سوچ کر انٹرنس کی طرف بڑھی۔ برائیڈل روم سے باہر نکل کر خانم کے قدم خود بخود فارم ہاؤس کی بیک سائڈ کی طرف مڑے، جہاں ساحر کھانے اور سجاوٹ کا انتظام کروا رہا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر خانم کو یقین ہو چلا تھا کہ دوسرے تمام کاموں سے زیادہ اہم اس کے لیے اس کے ساحر سائیں کا حکم تھا۔ وہاں ساحر کو اکیلا بیٹھا دیکھ خانم کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنا لہنگا تھامے دھیرے دھیرے قدم چلتی اس کے پیچھے آئی اور اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ڈھک گئی۔ آج کا دن خاصا تھکا دینے والا تھا۔ سارے انتظامات بھی ساحر کو خود ہی دیکھنے پڑے۔ وہ بڑی بڑی سجاوٹ سے لے کر چھوٹی موٹی سجاوٹ بھی خانم کی پسند کے مطابق کروانا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ وہ ہر چیز اپنی نگرانی میں نور خانم کی پسند کے مطابق کروانا بھی چاہتا تھا اور کروا بھی رہا تھا۔ سارے انتظامات کروانے کے بعد وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے اپنے گھر جا کر فریش ہو کر تیار بھی ہونا تھا، جب ایک دم کسی نے اس کی آنکھوں پر اپنے مومی ہاتھ رکھے تھے۔ ہاتھوں سے آتی مہندی اور پھولوں کی خوشبو محسوس کیے ساحر کی مونچھوں تلے سرخ لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چوڑیوں کی کھنکار اس کے دل میں بھی ارتعاش پیدا کر گئی۔ ساحر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر خانم کو پکارا، جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سوچ لیں ساحر سائیں، یہ نہ ہو مجھے دیکھ کر ہوش ہی کھو بیٹھے، خانم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ساحر بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سوچ لیا اور ساحر آپ کو دیکھ کر ہوش بھی کھو بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خانم ایک دم سے اس کے سامنے آئی اور ساحر واقعی ساکت رہ گیا۔ خوبصورت نہیں، وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ساحر سائیں؟ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ خانم نے مسکراہٹ دبا کر اس کے آگے چٹکی بجائی، جو مبہوت ہو کر خانم کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں کی، ہمیشہ ایک ہی لڑکی کو دل سے چاہا ہے، اور میری محبت کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ لڑکی میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت لب و لہجہ خانم کو خود پر رشک کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے گال سرخیاں جھلکانے لگے۔ خانم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شکریہ، ساحر نے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ شکریہ کس لیے؟ خانم نے اپنی جھلی پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ میرا مان رکھنے کے لیے۔
आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। हानम ने धीमी मुस्कुराहट के साथ सर खम किया, फिर कुछ याद आने पर संजीदा हुई। साहिर साईं, मेरे बदले का वक्त आ गया है, जब किस्मत उस शख्स को मुंह के बल गिराएगी। साहिर साईं, मेरे बदले का वक्त आ गया है, जब किस्मत उस शख्स को मुंह के बल गिराएगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस वक्त का। उस शख्स को आज पता लगेगा कि किसी के किरदार को मशकूक बनाना क्या होता है, गरूर का अंजाम क्या होता है। हानम के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। नूर, साहिर ने बहुत धीमे लहजे में उसे पुकारा। जाने क्या था उसके लहजे में कि हानम ने चौंक कर उसे देखा। जी साहिर साईं। साहिर की नज़रें सामने दरख्त पर लगी फैंसी लाइट्स पर थीं जो बार बार जल बुझ रही थी। मैं तुम्हारा सकून चाहता हूँ। सकून? हानम खामोश थी, या फिर साहिर की बात समझने की कोशिश कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं साहिर साईं? हानम ने नासमझी से पूछा। उसे वाकई उसकी बात की समझ नहीं आई थी। हानम साहिर ने अपना रुख हानम की तरफ किया और उसका भारी चूड़ियों से भरा हाथ थामा। नूरे साहिर, मुझे तुम्हारा सकून बहुत अजीज़ है। खुदा की कसम, अगर उस शख्स की तजलील से तुम्हें सकून मिलता हो तो उस शख्स को मैं पहले ही उसकी औकात बता चुका होता। मगर मैं जानता हूँ मेरी हानम ऐसी नहीं है। वो सबसे जुदा है, जिसका दिल बहुत नर्म और ख़ूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, लाइट ऑफ डिवाइन। उसे दूसरों को रुसवा करके कहाँ वो सकून मिलेगा। वो तो, और सुरमई आंखों से होते सुरमई धुएं में कहीं खो गई थी। वो हर शय कहीं पीछे चली गई थी। हानम, मेरी जान, मेरी लाडो, क्यों रो रही है? असद हाकिम ने रोती हुई हानम को गोद में उठाया। बाबा साईं, जावियार साईं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो मुझे सब दोस्तों के सामने मोटी मोटी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हानम ने रूहानसी लहजे में कहा था। अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने की क्या बात है? आप उसे आने दो, मैं उसे देख लूँगा। नहीं बाबा साईं, आप देखना, कल मैं भी उनके दोस्तों के सामने उन्हें काला काला कहूँगी, फिर उन्हें पता लगेगा। हानम ने अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू साफ किए। ना मेरी जान, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अल्लाह साईं नाराज़ होते हैं। असद हाकिम ने उसे टोका। मगर बाबा साईं, वो भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह साईं उससे नाराज़ होंगे। आपने तो नहीं करना ना अल्लाह साईं को नाराज़। और अगर वैसे भी आप उसका मजाक उड़ाओगी तो क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और मेरी हानम में? आप तो सबसे मुख्तलिफ हो। अपने बाबा साईं की चंदा। सॉरी बाबा साईं, सॉरी अल्लाह साईं, मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हानम भी उस मंजर को अपनी आंखों में याद करते हुए खोई ही थी जब वो साहिर की अगली बात पर होश में आई। मगर फिर भी तुम्हारा फैसला कुछ और है तो तुम अपने रास्ते पर मगर फिर भी तुम्हारा फैसला कुछ और है तो तुम अपने हर रास्ते में, अपने हर फैसले में साहिर हम्माद खान को अपने पास पाओगी, अपने साथ पाओगी। हानम ने नम दीदा आंखों से उस शख्स को देखा जो ना सिर्फ उसे उससे ज़्यादा जानने का दावेदार था बल्कि उसे बेहद अजीज भी था। उसे बदले से ज़्यादा, अपने हर काम से ज़्यादा। हानम ने गहरा सांस हवा के सपुर्द किया और उठ खड़ी हुई। हाथ अभी भी साहिर ने थामा हुआ था। तो क्या फैसला किया है नूर? वही जो नूरे साहिर का होना चाहिए। हानम ने अपना हाथ आज़ाद करवाया। हाथ छोड़िए साहिर साईं, मेहमान नवाजी का वक्त है। हम गांव वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अब बाहर मेहमान आए हैं तो उन्हें ये भी ना कहें कि खाना खा कर जाइएगा। नूरे हानम वाकई सबसे जुदा थी। क्या उसका किरदार इतना बेमोल था कि उसकी वजाहत के लिए वो अपने असूल तोड़ देती? उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका शोहर उस पर यकीन करता है, उसके घर वालों को यकीन था उस पर। फिर लोग क्या कहेंगे? उसकी कोई गुंजाइश बचती कहाँ थी? साहिर ने मोहब्बत भरी नज़र उस पर डाली जो उसको जान रही थी, उसका मान रख रही थी, उसके एक बार कहने पर हर बार मान जाया करती थी। जावियार चील की तरह सनम पर लपका। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। समीना और हुमा बेगम के हाथ बेसाख्ता मुंह पर गए। ये क्या कर रहे हो जावियार? समीना बेगम ने सनम को पीछे हटाते हुए कहा। हट जाएं सारे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी नूर की शादी हो रही है उस साहिर से। इसकी वजह से मैंने अपनी बीवी खोई है। इसने और सोनिया ने वर्गलाया था मुझे, झूठी बातें बताई थी नूर के खिलाफ। क्या कहे जा रहे हो जावियार? समीना चीखी। नहीं छोड़ूंगा मैं दोनों को। मेरा घर बर्बाद किया आपकी बेटी ने, इसे तो मैं अभी। जावियार एक और थप्पड़ इससे पहले के मारता, अखजर ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। सनम तो जावियार के एक ही थप्पड़ से बेहोश होने को थी। दूसरी दफ़ा उसे हाथ हवा में बुलंद देखकर उसने ज़ोर से अपनी आंखें और मुठियां दोनों भींची थीं। जावियार ने अपने हाथ को सख्ती से थामे अखजर को देखकर अपना हाथ झटका। इसे हाथ भी मत लगाना मीर जावियार। अखजर की धाड़ पर जावियार के माथे पर बल आए। तमीज़ से बात करो।
मुझसे तमीज से बात करो मुझसे, और क्यों ना लगाऊं इसे हाथ? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इस गांव का सरदार हूं मैं, और अपने खानदान की इज्जत पर हाथ उठाने वाले के हाथ काट सकता हूं। और तुम्हें तो इस हवेली से निकाल दिया गया, तो फिर किस मुंह से वापस आए हो तुम? किस मुंह से नाम ले रहे हो मेरी अद्दी साईं का, जिसको निकाह के रोज ही तलाक देकर भाग गए थे तुम? अफसर ने उसे धक्का दिया। तमीज से रहो असगर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम छोटे हो मुझसे। तमीज की बात तो तुम मत ही करो, तुम्हारे मुंह पर ये लफ्ज़ जच ही नहीं रहा, और निकलो इस हवेली से। तुम जैसा कच्चे कानों का इंसान, वक्त रहते ही जान छूट गई हमारी। मेरी अद्दी साईं की जान बच गई। उंगली अगली बार अगर मेरी अद्दी साईं का नाम भी लिया ना तुमने, जुबान खींच के हाथ पे रख दूंगा तुम्हारी। वो कहीं से भी 18 साल अफसर नहीं लग रहा था। जावियार अफसर के पास खड़े 3 बॉडीगार्ड्स को देखकर हाथ मलता रह गया। मगर अब उसे पता करना था कि सोनिया कहाँ है, क्योंकि इन सब में वो भी शरीक थी। सनम पर तो उसका बस नहीं चला, मगर सोनिया को उसने छोड़ना नहीं था। अपना हुलिया ठीक करो, आगा साईं का फ़ोन आया है। अफसर वापस आकर कांपती सनम को कहकर वापस मुड़ गया। हुमा और समीना बेगम गाड़ी में बैठ चुकी थी। सनम भी जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करती गाड़ी में आकर बैठी। दिल अभी भी अंदर से डर के मारे सुकड़ रहा था। अलीना, ऐनी और हाला बेगम हानम के साथ ब्राइडल रूम में बैठी थी जब आगा साईं और अख्तर हानम को लेने आए थे। फूलों की चादर के साए में एक तरफ से अख्तर और दूसरी तरफ से आगा साईं ने हानम के बाजू से थामा हुआ था उसे। दोनों के दरमियान में हानम कदम कदम उठाती स्टेज पर उसके इंतजार में खड़े ऑफ वाइट शेरवानी के साथ सुर्ख रंग के कुले में शहजादा लगता साहिर अपनी शहजादी के इंतज़ार में उसकी इज्जत में उठ खड़ा हुआ था। साहिर के साथ जारून उसके भाई की हैसियत से मौजूद था, तो ऐनी दोनों की ही साइड पर थी। एक तरफ साहिर की बहन तो दूसरी तरफ हानम की दोस्त। ऐनी भी महरून और स्याह रंग के इम्तियाज़ का भारी ड्रेस पहनकर संभालती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। मशरकी तर्ज के कपड़े उस पर वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे, जिसकी तारीफ जारून सबके सामने कर चुका था बिना ऐनी की घुड़ियों का असर लिए। हानम ने जैसे ही साहिर के बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हिनाई हाथ रखा, हर तरफ से तालियां और हूटिंग का शोर गूंजा, और एकदम से दोनों पर गुलाब की बरसात होने लगी। हानम को लगा कि किसी ने उसका दिल पढ़कर सजावट करवाई हो। फिर रस्मों का दौर चला। दूध पिलाई की रस्म में अलीना, ऐनी और सनम पेश पेश थी। बिल आखिर वो वक्त आ ही गया जिसके लिए बेटी के माँ बाप खुश होते हुए भी दुखी हो जाते हैं। हानम को कुरान पाक के साए तले साहिर के साथ रुखसत करने का वक्त आ चुका था। हानम सबसे पहले आगा साईं के साथ लगी। आंखों से बेशुमार आंसू निकल कर बह गए। आगा साईं ने ढेरों दुआएं उसके सपुर्द की। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके गले लगी। जवाद और जावेद साईं ने भी उसके सर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। सबसे आखिर में हाला बेगम के गले लगकर वो बहुत रोई। दोनों को ही असद हाकिम की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी उस वक्त। इस कमी को महसूस करके हम्माद खान आगे बढ़े और उन्होंने हानम के सर पर दस्ते शफकत रखा। नूरे हानम अपने साहिर साईं के संग खान विला रुखसत हुई। आसान नहीं था साहिर साईं और हानम को देखना, मगर ये आग भी तो मेरी ही जलाई हुई है ना। सोनिया ने तो बस तेल का काम किया था। काश मुझे पहले ही पता होता कि कमकली एक तरफ मोहब्बत काश मुझे पहले ही पता होता कि एक तरफा मोहब्बत सिर्फ ज़ख्म देती है जो नासूर बनकर सारी ज़िंदगी रिश्ता है, तो शायद मैं अपने कदम रोक लेती। मगर फिर सोचती हूँ कि ये मेरी सज़ा है, किसी पाक दामन पर इल्ज़ाम लगाने की सज़ा, किसी का दिल दुखाने की सज़ा। मैं सनम जवाद मीर बस इतना ही कहूँगी, बेशक मोहब्बत एक फितरी अमल है। ये बताई नहीं जाती कि कब और कहाँ और कैसे दिल में उतरेगी, मगर जब लगेगी ये यकतरफा है तो खुद पर पहरे बिठा लो, क्योंकि जब यही मोहब्बत नासूर बनती है तो सारी ज़िंदगी सिर्फ तकलीफ़ का ही बाइस बनती है। सनम ने डायरी बंद की ही थी, वो डायरी जिसकी वजह से सोनिया ने उसे इस्तेमाल किया था, जिसने उसके दिल के तहखानों में छुपे राज को फाश किया था। सनम ने अपने हाथ में पकड़े लाइटर से आग जलाई और उसे डायरी के करीब ले गई। देखते ही देखते आग ने पूरी डायरी पर अपना कब्जा जमा लिया। कमरा धुआं धुआं हो गया था। सनम हनूज डायरी को हाथ में ही पकड़े बैठी थी। उसे अपने हाथ पर जलन महसूस नहीं हो रही थी जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। तू पैसे भेज रही है कि वायरल करूं तेरी तस्वीरें? फ़ोन के उस तरफ से मुकाबिल की मकरू आवाज़ गूंजी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। सोनिया गिड़गिड़ाई। ओह बीवी, जो मुझसे खुला लेना चाहती है? मैं भी देखता हूँ तू कैसे मुझसे आज़ादी लेती है। कोई मदद नहीं करेगा तेरी, न तेरे घर वाले न तेरा बाप। अब तो सिर्फ तू मेरी गुलाम है, पता लग गया है मैंने।
पता लगा लिया है मैंने कि कहाँ छुप कर बैठी है तू। आ रहा हूँ सुबह लेने, पैसों का इंतजाम करके रखना, नहीं तो उस दिन की मार याद तो होगी ना तुझे। अगर ऐसा करना था तो क्यों शादी की मुझसे, अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की थी मुझसे, उस दिन इनकार कर देते ना। सोनिया चीखी। मुझे लगा था इतने अमीर खानदान की है तू, कुछ तो देंगे, मगर तेरे घर वालों ने तो खाली खुली तुझे मेरे साथ रुखसत कर दिया, मेरे सर पे मंड दिया। फोन रखा, दिमाग खराब ना कर मेरा। नहीं। सोनिया फोन दीवार पर मारकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मक्कार शख्स उसे पैसों के एवज ब्लैकमेल कर रहा था। फिर दरुस्तगी से अपने आंसू रगड़ती उठी और सीढ़ियां उतरती नीचे की जानी पड़ी। सोनिया नीचे आई तो शाइस्ता बेगम सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ थी। उसे बेसाख्ता ही अपनी माँ से नफरत महसूस हुई। आज सोनिया जिस हाल में खड़ी थी उसकी माँ को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक आखिरी नफरत अंगेज नज़र उन पर डालकर किचन की जानिब बढ़ी। जावियार ने हवेली में काम करने वाली को पैसे देकर शाइस्ता बेगम की रिहाइश का पता लगवाया था। वो जल्द अज जल्द उधर पहुंचना चाहता था, अपने ज़मीर के गिल्ड से आज़ादी चाहता था, और आज़ादी पाने का एक ही रास्ता था, सारा मुद्दा सोनिया और सनम के सर पर डालना। सनम हनूज डायरी को हाथ में ही पकड़े बैठी थी। उसे अपने हाथ पर जलन सी महसूस नहीं हो रही थी जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हानम की रुखसती के बाद हाला बेगम भी मीर हवेली ही वापस आ गई थी। गो के आंसा बेगम ने भी हानम के साथ उन्हें खान विला में रुकने को कहा था। पहले तो मजबूरी थी, अब उन्हें अपनी बेटी के ससुराल में रहना मुनासिब नहीं लगा तो उन्होंने खूबसूरती से इनकार करते अपने ससुराल आना ही पसंद किया। अख्तर अजीब सी कैफियत में लॉन में टहल रहा था। आज के हुए वाक़ये के बारे में आगा साईं और दोनों मर्दों से कोई बात नहीं हुई थी उनकी, मगर अख्तर ने तो सब देखा सुना था। उसे हैरानगी भी हो रही थी कि सनम और सोनिया इस हरकत में भी मुलव्वस थी। सोनिया से तो उसे कोई गर्ज नहीं था, वो कैसी है, क्योंकि शहर में रहने की वजह से वो बहुत आज़ाद ख्याल थी और शाइस्ता फुप्पो साईं की पूरी शह मिली हुई थी उसे। मगर सनम भी ऐसी थी। सनम उससे उम्र में 4 माह बड़ी थी, मगर वो उसे पसंद करता था और ये बात अपने घर वालों को भी बताने वाला था, मगर उसे लगा अभी ना तो उसकी उम्र है और ना ही सनम की। मगर पिछले चंद महीनों से हुए नागुज़ीर वाक़यात की वजह से बहुत कुछ बदल गया था। अब जब उसे आगा साईं ने गांव का सरदार बना दिया था, वो सनम वाली बात जल्द घर वालों से करने का इरादा रखता था और उसे पूरा यकीन था कि किसी को कोई मसला ना होगा। मगर आज के हुए वाक़ये पर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। अब ये क्या नया मामला था। अक्सर उसका जवाब सुबह सनम से लेने का मुकम्मल इरादा रखता था। अपनी पेशानी मलते अक्सर की बेध्यानी में लॉन से नजरें सनम के कमरे की खिड़की पर गई, जहां से सुरमई धुआं निकल रहा था। अक्सर को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ। वो पूरी रफ्तार से ऊपर की तरफ दौड़ा। अक्सर ने जोर से सनम के कमरे के दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। तुम पागल हो गई हो। अक्सर ने उसके सुर्ख होते हाथ से आधी सड़ चुकी डायरी को पकड़कर जमीन पर फेंका। अगर जलने का इतना ही शौक है तो किचन में जाकर ये पूरा करो, इतनी सी आग से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अक्सर ने गुस्से से तंज भरे लहजे में कहा। सनम ने खाली निगाहों से उसे देखा। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसका दुपट्टा सर पर नहीं। फिर सनम ने उन्हीं खाली वीरान आंखों से जलती डायरी को देखा। फिर वहशत ज़दा होकर डायरी उठाई और उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करने लगी। सब इसकी वजह से हुआ है ना। सोनिया उसे पढ़ती और ना मुझे ब्लैकमेल करने का मौका मिलता उसे। कागज़ के एक एक टुकड़े के चीथड़े करने के बाद वो फूट फूट कर रो दी। जावियार गुस्से से खोलता उनके घर के बाहर मौजूद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था और सोनिया, ओ सोनिया देख बाहर कौन आया है। सोफे पर बैठी शाइस्ता बेगम ने सोनिया को आवाज़ लगाई, मगर जवाब निदार्थ। सोनिया कहाँ मर गई है, देख बाहर कौन आया है। एक तो मनहूस को चैन नहीं, एक तो इन मनहूसों को चैन नहीं, पता नहीं इतनी रात को कौन आ घुसा है यहाँ पर। शाइस्ता बेगम सोनिया को भाड़ में झोंक कर खुद ही दरवाज़ा खोलने बाहर की जानी बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर अपने सामने खड़े जावियार को देख गोया उनके मुंह से ही फूल बरसने लगे। हाय मेरा जावी बेटा आ गया। मुझे पता था मेरा बच्चा अपनी फुप्पो साईं को इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे लेने आ गया। शाइस्ता बेगम शुरू हो गई, मगर जावियार उनके प्यार को नज़रअंदाज के अंदर की जानी बढ़ा। सोनिया, सोनिया, जोर जोर से चीखता वो सोनिया को तलाशने लगा। फुफ्फो कहाँ है सोनिया, छोड़ूंगा नहीं आज मैं उसे। जावियार सीधा ऊपर की जानी बढ़ा, मगर सोनिया का कहीं अता पता नहीं था। जब शाइस्ता बेगम की चीख पर वो नीचे किचन में आया, वहाँ सोनिया ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके दाएं हाथ की कलाई से खून पानी की तरह बह रहा था। हाय सोनिया मेरी बच्ची। शाइस्ता बेगम उधर ही बैठकर मातम मनाने लगी।
हटें। जावियार ने एम्बुलेंस को कॉल मिलाई। सनम चुप कर जाओ। क्यों चाहती हो तुम्हारी आवाज़ पर सब घर वाले यहाँ इकट्ठे हो जाएं? अफजर ने सख्ती से कहा तो सनम अपनी सिसकियाँ दबाने के लिए अपनी हथेली अपने मुंह पर रख गई। बस कर जाओ सनम, आप नहीं जानते अफजर साईं, अगर आप मुझे जान जाएं तो यहाँ मेरी हमदर्दी में आने की बजाय मुझे जान से मारना पसंद करेंगे। सनम ने अजियत से कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी असलियत जानना भी नहीं चाहता, या ये समझ लो मुझे मुझे तुम्हारे हर फैसले के लिए खुश फहम रहना है। तुम्हारे बारे में वो कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कहकर उसके कमरे से निकल गया। पीछे सनम साकित और जामिद बैठी रही। हानम को काफ़ी धूमधाम से खान विला लाया गया था। रस्में करने के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। हानम कब से बैठी साहिर का इंतज़ार कर रही थी, जो जाने कहाँ रह गया था। अब पता नहीं कहाँ रह गए। हानम बेजारी से घड़ी की तरफ देखती तो कभी हाथों की चूड़ियों को छेड़ती। एक मिनट, मेरा ब्रेसलेट। हानम ने अपने दाएं हाथ में पहनी चूड़ियों को आगे पीछे किया, मगर वहाँ ब्रेसलेट नहीं था जो साहिर ने उसे गिफ्ट किया था। ब्रेसलेट कहाँ चला गया? हानम उठ खड़ी हुई। मेरा ब्रेसलेट। पूरे कमरे में फिरती वो ब्रेसलेट ढूंढ रही थी। कभी ज़मीन पर बिछे दबीज कालीन पर पाँव फेरती तो कभी दरवाजे के पास जाकर देखती। अल्लाह जी, मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया। हानम रूहान सी हुई। ना, बिल्कुल नहीं। खान सर पैसे देंगे तो ही अंदर जाने दूंगी। एनी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे साहिर के कमरे के दरवाजे के आगे दीवार बनी खड़ी थी। ये क्या बात हुई? हॉल में तुम लड़की वालों की तरफ से थी और अब तुम खान की जेब हल्की करने के लिए यहाँ लड़के की बहन का रोल प्ले करने आ गई हो। ये तो नाइंसाफी है खान, 1 रुपया ना देना इसे। क्यों? आप चुप रहें, ये मेरा और मेरे भाई का मामला है। एनी के इतने मान से भाई कहने पर साहिर ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर एनी की तरफ बढ़ाए। खान जिंदाबाद। एनी साइड पर हटी। अब मत बुलाइएगा मुझे। जारून को मुंह चिढ़ाकर वो वहां से निकलती बनी। पीछे साहिर और जारून दोनों ही उसके बचपने पर मुस्कुरा दिए। चल भाई, तू अपने रास्ते, मैं अभी तुम्हारी ताज़ा ताज़ा बनी बहन को मना कर आया। जारून साहिर के गले लगकर उस तरफ गया जहां अभी कुछ देर पहले एनी गई थी। साहिर सलाम करता कमरे में दाखिल हुआ तो हानम परेशान सी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। क्या हुआ नूर, इतनी परेशान क्यों हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? साहिर साईं। हानम की आंखें नम हुई। प्लीज़ नूर बताओ क्या हुआ है? साहिर परेशान हुआ। साहिर साईं, मुझे जो आपने ब्रेसलेट दिया था वो गुम हो गया है। हानम रोहानसी लहजे में कहती उसे बहुत प्यारी लगी। तो ये आंसू ब्रेसलेट गुम होने के हैं? साहिर ने पूछा। हानम इस बात में सर हिला गई। आपने मुझे पहला गिफ्ट दिया था, वो भी मैंने खो दिया। मैंने पहना हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने जानकर नहीं गुमाया। काम डाउन नूर, वो ब्रेसलेट इन आंसुओं से ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर मुझे वो चाहिए। आप मदद करें, इधर ही कहीं गिरा होगा। हानम फिर से दरवाजे के पास गई। रुको। साहिर ने अपनी शेरवानी की जेब से वो ब्रेसलेट निकाला। ये आपके पास कहाँ से आया? मुझे याद है, मैंने खुद तैयार होते वक्त पहना था। जब तुमने जावियार को थप्पड़ मारा था तब इसका हुक टूट गया था और ये वहीं गिर गया था। मगर ये तो ठीक है। हानम ने ब्रेसलेट का हुक देखा जो सही था। हाँ, मैं इसे ठीक ही करवाने गया था, तभी लेट हो गया। शुक्र है। हानम ने सुकून का सांस लिया। हानम ने ब्रेसलेट साहिर की तरफ बढ़ाया जिसने वो हानम के हाथ पर पहना दिया। मैं ये उतार दूं? ये ज्वेलरी बहुत तंग कर रही है, इतनी हैवी है ये। हाँ, 1 मिनट। साहिर ने अपनी अलमारी में से सूट रंग का एक बॉक्स निकाला और उसे हानम की जानिब बढ़ाया। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? इसमें क्या है? हानम ने इश्तियाक से वो बॉक्स थामा और जैसे ही ओपन किया उसकी आंखों में बेसाख्ताई खुशी के मारे नमी आ गई। साहिर साईं, वो बस इतना ही कह सकी। मुझे मोरे ने जब कहा कि तुम्हारे लिए कोई तोहफा खरीद लूं तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हें ऐसा क्या दूं कि तुम्हें वो हमेशा याद रहे। फिर मेरे दिल ने गवाही दी कि तुम जैसी नेक शरीके सफ़र के लिए कुरान पाक से अफजल और प्यारा तोहफा क्या हो सकता है? बेशक इससे अफजल क्या हो सकता है? हानम ने नम आंखों से उस बॉक्स में पड़े कुरान पाक को अकीदत से चूमा। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें ये तोहफा दुनिया में भी दूं और आखिरत में भी, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ इस फानी दुनिया के अलावा अब्दी दुनिया में भी चाहिए। तुम बहुत थक गई होगी, इतना हैवी ड्रेस है। तुम जाओ चेंज कर लो, तब तक मैं भी वज़ू करके आया, फिर साथ नमाज पढ़ेंगे, अपने रब के आगे सरबसजूद होंगे जिसने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया, उसका शुक्र बजा लाएंगे। हानम थोड़ी देर बाद सादा से सूट में धुले हुए चेहरे के साथ कमरे में आए तो साहिर ने 2 जाए नमाज आगे पीछे बिछाई हुई थी। हानम चलकर उसके करीब आए। फिर हानम ने अपनी नई जिंदगी की पहली नमाज अपने साहिर साईं की इमामत में पढ़ी। बेशक वो खुश नसीब थी, उसका शोहर उसका साथ आखिरत में भी चाहता था, और वो लोग काबिल रश्क और खुशकिस्मत होते हैं जिनके हमसफ़र उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देते हैं। सोरी यारैन,
بہن مان جاؤ نا، میں مذاق کر رہا تھا۔ زارون بیچارہ اسے منا رہا تھا جو اس کی کسی بات کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ جائیں جی، مجھ سے بات مت کریں، ناراض ہوں میں آپ سے۔ اچھا، اگر ابھی پائنیپل پیزا آرڈر کر کے دوں تب بھی نہیں مانو گی؟ زارون نے لالچ دیا۔ جی نہیں، تب بھی نہیں۔ اینی پھر بھی نہیں مانی تھی۔ اچھا یار سوری، مان جاؤ نا، چپ کر کے سو جائیں، صبح ولیمہ بھی ہے اور مجھے فریش ہو کر اٹھنا ہے۔ I'm sorry, she is no more. ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ زاویار لب بھینچ گیا۔ شائستہ بیگم ادھر ہی بیٹھتی چلی گئیں۔